Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome 10th class. We are going to start our general mathematics chapter number 3, algebraic manipulation, exercise 3.1. So girls, what's the meaning of algebraic expressions? Actually, algebraic expressions are the combination of variables, constants separated by fundamental operators like plus minus साइन से उनको सेपरेट किया होता है. तो ये होते हैं आपके algebraic expressions. अब आपने इन्हीं algebraic expressions को मैनिपुलेट करने हैं, मतलब इन पे डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशन अप्लाई करने हैं. Okay, so first thing that we are going to start, that is HCF. We have already know about HCF stands for highest common factor. Got it? सो सिंपली फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है. आपके पास आपने 16 और 24 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं. तो ऑब्वियसली व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द डिवाइजर्स दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मीन्स जब आपके फैक्टर ऐसे डिवाइजर्स होते हैं जो आपके गिवन नंबर्स को, लाइक 16 एक गिवन नंबर है, इसको जब डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए. तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? और हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1. सो 16 के फैक्टर आ जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16. सो फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. सो नाउ यू हैव टू चूज कॉमन फैक्टर्स. 1 is common, 2 is also common, 4 is also common, 8 is common. So but our restriction is not about common. They want highest common factor, means they want HCF, and HCF means highest common factor. तो इनमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, बट वी हैव टू चूज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8. इट्स मीन HCF of 16 and 24 is 8. Okay, so the HCF of 16 and 24 is 8. So in algebraic expressions there are two methods to find the HCF. First method is about factorization method, and second method is division method. And all of you are familiar with factorization method because you know how to factorize the algebraic expression. You did this task in your chapter number 2. According to SMART syllabus of exercise 3.1, question number 1, question number 2, question number 5, question number 7, question number 11, question number 12, and question number 15 are included. So let's start the question number 1. In question number 1, we have two expressions a, b, x, y, and a square, b, c. First of all, we have to take the factors of each expressions separately. So if I'm going to take the factors of a, b, x, y, so see what's happened. Factors of a, b, x, y. You see that there is no sign between b and a. It's mean a and b are multiplied with each other. Similarly, b and x are also multiplied with each other. X and y are also multiplied with each other. So I can just separate all these variables like a multiply b, b multiply x, and x multiply y. Similarly, a square, b, c. It's mean, what's the meaning of a square? A square means a multiply with a, and b and c are also multiply with each other. So look at here. What you see? How many factors are common? This a is common, and this b is also common. Is there any partner of this a? No, there is no partner of this a, because these two a make a pair and they are common. These two b's are also common. So x, y, a, and c are not common. So let's see. Now you see that I can make a pointer around these a and b and b. So HCF is equals to a multiply b. अच्छा, अब आपके पास देखें a कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो आपने a को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है और b को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a b. Okay, so now come toward the question number 15, because question number 15 and question number 1 are quite similar.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है 35 ए स्क्र सी क्यूब बी, 45 सेकेंड एक्सप्रेशन है 45 ए क्यूब सी बी स्क्र, थर्ड एक्सप्रेशन है 30 ए सी स्क्र बी क्यूब। तो गर्ल्स जैसे अब स्टूडेंट्स देखें 35 आपके पास है, तो पहले आप ए स्क्र सी क्यूब और बी को तो आपको पता है, आपको लिखना आ गया, आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में टास्क परफॉर्म जैसे ए बी एक्स वाई, तो आपने कहा था ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो सिमिलरली आप यहाँ पे ए स्क्र सी क्यूब और बी को तो टैकल कर लेंगे, बट जो कोफिशिएंट्स हैं इनको किस तरीके से टैकल करना है ये देखें। सबसे पहले फर्स्ट कोफिशिएंट है हमारे पास 35, तो आप 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। लुक एट हियर, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो इसके इस 35 के फैक्टर्स क्या आए हैं 5 एंड 7, 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35 हियर। ओके, तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 45 के फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली 30 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सपोज, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी चला जाएगा आपके पास, 2 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आपने 35 अगर आपके पास ना कोफिशिएंट्स आ रहा है, आप पहले उनकी सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से होती है, ऑब्वियसली इसके नाम से पता लग रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो प्राइम नंबर से ही होगी। ओके, तो अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से इसको हमने टैकल करना है। फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही फैक्टर ऑफ 35 ए स्क्र सी क्यूब बी। 35 के फैक्टर क्या आए थे 5 मल्टीप्लाई 7, और ए स्क्र को किस तरह लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए, सी क्यूब मीन सी मल्टीप्लाई सी एंड मल्टीप्लाई बी। सिमिलरली 45 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, और ए क्यूब को आप इस तरह एक्सपेंड करेंगे ए मल्टीप्लाई ए, सी की पावर 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, एंड बी स्क्वेयर्ड्स मीन वी मल्टीप्लाई बी। सिमिलरली 30 को टैकल करने का तरीका है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड ए इज एज इट इज सी स्क्वेयर मीन सी मल्टीप्लाई सी एंड बी क्यूब मीन्स बी मल्टीप्लाई बी। सो लुक एट हियर, सो व्हाट यू थिंक दैट विच फैक्टर्स आर कॉमन। जो पहला फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है दैट इज 5 इज़ कॉमन, ये देखिए 5 कॉमन आ रहा है ना, इस तरीके से 5 कॉमन है। हैव यू सीन माई पॉइंटर, ये पॉइंटर जिसके अराउंड मूव कर रहा है 5 कॉमन है। सेकंड फैक्टर जो कॉमन आ रहा है डेट इज़ ए, एक ए हर एक के पास मौजूद है, हर एक्सप्रेशन में एक ए तो है। इसी तरह सी भी हर एक्सप्रेशन में है, लाइक इस तरीके से, और एक बी भी हर एक्सप्रेशन में है। अगर आपको लगता है 2 बी हर एक्सप्रेशन में, तो ऑब्वियसली देखें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वहाँ पे एक बी है। और इसी तरह अगर ए की बात की जाए तो पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में 2 ए आ रहे हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर में 3 ए आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड के फैक्टर है उसमें सिर्फ एक ए है। तो आपको कॉमन लेना है तीनों में से, ऐसा नहीं किसी 2 में से आप कॉमन ले लें, आपने तीनों में से कॉमन फैक्टर चूज़ करना है। तो तीनों में जो सिंगल ए ही कॉमन आ रहा है, और तीनों में सिंगल सी कॉमन आ रहा है और सिंगल बी कॉमन आ रहा है, एंड ऑब्वियसली 5 इज़ कॉमन। तो देखते हैं अब इसको, देखें इस तरीके से ये आपको पिंक पॉइंटर से 5 कॉमन कर लिए, ग्रीन पॉइंटर से ए को, पर्पल पॉइंटर से सी को, ऑरेंज पॉइंटर से बी को हमने कॉमन कर लिए। तो आपके पास HCF क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। 5 ए और बी एंड सी को जो मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 5 ए बी सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 आपको इन्होंने प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना के दिए, लाइक ए माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 1, थर्ड एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की टेक्निक सीखी हुई है ऑलरेडी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे आपको पहले से नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस फार्मूला से रिलेट कर रहे हैं। हैव यू स्टडीड अबाउट दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जैसे ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो फैक्टर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अगर हम फैक्टर लेते हैं वो क्या आते हैं ए प्लस एक्स 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, राइट। तो उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अच्छा फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, देखें हम एक्स क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखें अब आपके पास ए इस वक्त एक्स है और बी आपके पास क्या है 1। तो जब आपने पहले करना है ए प्लस बी तो मीन आ जाएगा एक्स प्लस 1,
सेकंड में आ जाएगा ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू इस वक्त क्या है आपके पास एक्स, मीन एक्स का स्क्वेयर, माइनस, अगर सेंटर में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऑपोजिट होता है यहाँ पर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे होता है ए इंटू बी, आपके ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 1 है, जब एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वेयर भी 1 ही होता है, तो आपके पास एक्सप्रेशन 2 आ जाएगा। अच्छा अब थर्ड एक्सप्रेशन पे आते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर। इसमें गर्ल्स ब्रेकिंग द टर्म की टेक्निक यूज़ की गई हुई है। ब्रेकिंग द टर्म की टेक्निक यूज़ करने का तरीका होता है कि आप अपनी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, 1 को माइनस 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर। अब आपने माइनस 2x स्क्वेयर के फैक्टर्स लेने हैं इन सच अ वे कि अगर आप उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस कर लें तो आपका सेंट्रल टर्म सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पे, इसको ब्रेक इस तरीके से किया हुआ है, 1 एंड माइनस 2x स्क्वेयर अपनी जगह पे ही है, और माइनस एक्स को ब्रेक किया हुआ माइनस 2x प्लस एक्स। देखिए माइनस 2x और x को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा माइनस 2x स्क्वेयर ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया था, और माइनस 2x और प्लस एक्स मिलकर आपकी सेंट्रल टर्म माइनस एक्स को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अच्छा अब देखें नाउ यू हैव 4 टर्म्स, तो पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहली 2 टर्म्स में से अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज नथिंग इज कॉमन इट्स मीन 1 इज कॉमन, तो 1 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x। अब लास्ट 2 टर्म्स में से x और माइनस 2x स्क्वेयर में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x इज कॉमन, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x, बिकॉज 2x स्क्वेयर था ना, एक x, तो x स्क्वेयर का मतलब x मल्टीप्लाई x, एक x कॉमन में चला गया और अंदर एक x बच गया 2 के साथ। ओके सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन, इफ 2 ब्रैकेट्स आर सेम यू हैव टू राइट दीज 2 ब्रैकेट्स ओनली 1 टाइम एंड पुट द नंबर डेट आर आउटसाइड द ब्रैकेट इन अ सिंगल ब्रैकेट। जो आपके पास नंबर्स ब्रैकेट्स के बाहर हैं इनको आप एक सिंगल ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे 1 और प्लस x को, और जो 2 ब्रैकेट सेम है इन दोनों ब्रैकेट जो सेम है इनको एक दफ़ा ही लिख लेंगे। अच्छा कल जब आप देखें आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके फैक्टर्स में 1 प्लस एक्स आ रहे हैं, सेकेंड के जो हमने फैक्टर्स लिए तो उसमें x प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये कम्यूट करते हैं 1 प्लस एक्स x प्लस 1 के इक्वल होता है, बिकॉज देखो अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव साइन है 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों का आंसर कि 5 ही है, इस तरह x प्लस 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1, तो ये सेम है एक्चुअली, और यहाँ पे भी आ रहा है 1 प्लस एक्स। इट्स मीन 3 एक्सप्रेशन में जो हमारे पास कॉमन चीज़ आ रही है डैट इज़ 1 प्लस एक्स, x प्लस 1 एंड 1 प्लस एक्स। इट्स मीन योर HCF इज़ 1 प्लस एक्स। Okay, so your homework is question number 2, question number 5, question number 7 and question number 12, because we did question number 1, question number 15 and 11 in our class. तो आप ये 2, 5 और 7, 12 में आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।